So, very good afternoon, one and all. I am Sushant Rajendra Bargat, research scholar, PhD student of OP Jindal University and physics faculty. So, today we are going to discuss the very important topic in terms of state board, in terms of entrance point of view, any type of entrance, it may be MSTCET, JEE, NEET. Okay, today's topic is elasticity. Okay. So what is elasticity? So before starting the topic, I am going to ask you one question. If I am considering two material, one is plastic or rubber, take a rubber, and another is the steel. So which one is the more elastic? Means मला असं म्हणायचं आहे की जर आपण दोन मटेरियल कन्सिडर केले, एक आपण कन्सिडर केलं रबर आणि दुसरा जर स्टील, तर जर मी विचारलं या दोन पैकी सर्वात जास्त इलास्टिक मटेरियल काय आहे, कोणचं आहे, तर मॅक्झिमम स्टुडंट कडून आन्सर एक्सपेक्टेड हेच राहील की सर रबर इज मोर इलास्टिक दॅन स्टील. बट इट इज टोटली 100% रॉंग. ओके, द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल in these two is steel. Why so? Why this happened? What is the reason behind that? For these all questions you must know what is the concept definition of elasticity, and this topic is very interesting and important in terms of engineering point of view. Means those who are planning for electrical engineering, mechanical engineering and civil engineering, for these people they are going to study this in detail in their future life. Okay, so come to the topic before starting any other topic. So what is elasticity? So according to the definition of elasticity, the property by virtue of which material body regain their original dimension after removal of deforming force known as the elastic body or elastic material. Means simple language मध्ये असं म्हणू शकतो मी, असा मटेरियल ज्याला आपण फोर्स लावल्यानंतर तो इलॉंगेट तर होईल, बट फोर्स काढल्यानंतर तो मटेरियल रिगेन करेन त्याची ओरिजिनल डायमेन्शन, अशी बॉडी म्हणजे इलास्टिक बॉडी. म्हणजे इन सिम्पली आय कॅन से दॅट व्हॉट इज इलास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हर्च्यू ऑफ मटेरियल इन विच मटेरियल अंडरगो डिफॉर्मेशन when a force is applied, and if you remove the force the material regain their original dimension. This is known as the elasticity. Sir, what happened in rubber and steel? See, with the help of diagram I am going to explain in detail. Let us consider this is a rigid support. हा एक rigid support आहे. ओके, आणि हा एक वायर आहे. टेक अ रबर वायर. ओके, and a weight is applied. See, this weight, force, tension, these are the similar things or similar words specially used in elasticity. Because what is W? Weight is nothing but the mg. What is force? ma. This is nothing but the a. Acceleration, what is g? Acceleration due to gravity. But both are the accelerations na, that's why we are going to compare it. So w and force are the same, nothing but, means roughly we can say. Okay, don't take it very seriously. Okay, तो क्वेश्चन ऐसा था, अगर इफ यू कंसीडर दिस इज स्टील और रबर वायर एंड वेट इज अप्लाइड, अगर आपने इसको वेट लगाया है तो वायर इलोंगेट होगा. ओके, सो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है. वेट लगाने के कारण ये इलोंगेट हो गया. दिस इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू दिस वेट. ये वेट के कारण जब मैं वेट निकाल लूं तो होगा ये कि ये मटेरियल रिगेन होगा तेरे ओरिजिनल डायमेंशन पे. मटेरियल रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी? Under the action of any external force, when a force is applied to the body get elongated, and after removal of force, material regain their original dimension. This property is known as elasticity. But important thing is the perfectly elastic body is not exist in the universe, in the whole universe.
perfectly elastic body especially on earth surface is not present. मीन्स कहना ये है मुझे यहाँ पे कि अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी इलोंगेट होगी, और तुमने फोर्स निकाल लिया तो बॉडी रिगेन करेगा उसका ओरिजिनल डायमेंशन. बट इफ यू कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ रबर और टेक अ बो, what you observe, the original size of rubber is this. After applying using so many time, उसको बार बार यूज करने के कारण उसका साइज कुछ ऐसा हो जाएगा बार बार यूज करने के बाद. when force is applied, especially when you apply a force, the wire get elongated. this is the original. okay, जब वेट निकाल लूंगा तो ये अपने डायमेंशन पे आएगा जो कि इसके ओरिजिनल डायमेंशन से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा. तो दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक है. सो दिस एक्स्ट्रा पोर्शन वी गेट, ओके, दिस एक्स्ट्रा पोर्शन वी गेट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज नॉट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. बट वी आर कंसिडरिंग आइडियल कंडीशन. सब्जेक्ट समझने के लिए हम एक आइडियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं. उसमें हम ऐसा बोलेंगे कि मैं जब वेट लगा रहा तो बॉडी इलोंगेट होगी, जब मैं वेट निकालूंगा तो बॉडी रिगेन होगी. तो डेफिनेशन ऐसा ही है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अंडर द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स मटेरियल गेट इलोंगेटेड एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स मटेरियल रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन. सच अ बॉडी इज नोन एज द इलास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी. ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट. सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ रबर एंड स्टील. रबर और स्टील में क्या होगा, जब मैं रबर को वेट लगाऊं तो रबर इलोंगेट होगा, वेट निकालूंगा तो रिगेन होगा, पर वो उसके ओरिजिनल लेंथ पे नहीं जाएगा. बट यही मैं स्टील के हिसाब से करूं तो स्टील वायर को मैंने अगर वेट लगाया तो स्टील वायर इलोंगेट होगा, बट उसका इलोंगेशन रबर जितना नहीं होगा. इट इज 0.1 0.2 सेंटीमीटर और मैक्स टू मैक्स 0.3 सेंटीमीटर. एंड इफ यू रिमूव द वेट, वायर अगेन रिगेन देयर डायमेंशन, बट इट इज अप टू, let us consider this elongation is 0.3 centimeter in terms of steel, and if you remove it get elongated, and after removal of force the dimension is like this. उसका dimension कुछ रहेगा 0.05 सेंटीमीटर. ओके, बट ये ओरिजिनल पे आया क्या? नहीं, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं है. हाँ, पर वही मैं अगर रबर की बात करूं तो रबर में मुझे ये और ज्यादा इलोंगेट मिलेगा. समझ के लो मुझे 10 सेंटीमीटर इलोंगेशन मिला, और जब मैं इसका वेट रिमूव कर दूं, तो रिमूव करने के बाद मुझे इलोंगेशन मिलेगा इसका समवॉट 2 सेंटीमीटर. द डिफरेंस इज 0.5 एंड 2 सेंटीमीटर मच मोर. तो मैं ऐसा बोलूंगा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. क्यों? क्योंकि वो रिगेन ज्यादा करता है एज कंपेयर टू रबर. ओके, सो नेक्स्ट टाइम इफ एनीवन आस्क यू रबर इज मोर इलास्टिक और स्टील, देन से स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. व्हाई? ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, देन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक मटेरियल. देन सेकंड टॉपिक हमारा ये है प्लास्टिसिटी. क्या है? प्लास्टिसिटी. पहला हमारा था इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, सेकंड प्लास्टिसिटी. अभी प्लास्टिसिटी क्या है? सेम थिंग हैपन, टेक अ प्लास्टिक वायर और अ कैरी बैग, weight is applied, plastic. After the application of force or weight, that plastic wire or that carry bag get elongated. This is the original length. ये इसका original length है. weight लगाने के बाद elongate हो गया. Okay, ये इसका change in length है. But if you remove the weight, the wire do not regain their original dimension. wire उसका original dimension नहीं लेगा. So what is the definition of plasticity? Plasticity is the property of material under the action of any external force, wire get elongated. But if you remove the force, wire do not regain their original dimension. वो अपने original dimension पे नहीं आएगा. That is known as the permanent deformation, and in the language of physics we call it as a set. Set is nothing but the permanent elongation. तो हमने जब weight लगाया तो elongate हो गया, वेट निकाला तो रिगेन नहीं होगा, वो अपने ही डायमेंशन पे चला जाएगा या रहेगा.
this property is known as the plasticity, and the material which shows this property known as the plastic material. Perfectly plastic material exists in the universe. Clay, putty, plasticine, these are the example of perfectly plastic body. See the example of putty. If you see the wall putty, they are using a powder, adding a water, that paste like material paste on the surface. When due to air, when it get hard, then it is impossible to convert it into powder or their original shape. मीन्स मुझे कहना ऐसा है, अगर आप पुट्टी का अगर एग्जाम्पल लेते हो तो पुट्टी में पानी मिलाने के बाद पेस्ट लाइक सरफेस हो जाएगा. उसको वॉल के ऊपर या कोई भी सरफेस के ऊपर पेस्ट करो, वो उसका डायमेंशन ले लेगा. एक बार अगर वो हार्ड हो गया तो फिर आप उसका डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते, और आप उसको एकदम फिर से पाउडर बना रहे हो तो भी आप उसका वो पाउडर का फिर से पुट्टी जैसा यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर द डिफॉर्मेशन दे डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन. वो अपना प्रॉपर्टी लॉस कर देता है. सो क्ले, पुट्टी, प्लास्टिसिलिन, these are the examples of the plastic body. Okay, these are the things related to the topic. Now these are the very basic and introductory term. Many of the students know that. बहुत से लोगों को पता होगा ये क्या है क्या नहीं है. ओके, इसके बाद मुझे जो बताना है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वो है डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन ये टर्म डायमेंशन से रिलेट होता है. मीन्स जब मैं कोई बॉडी को जब फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो बॉडी में नॉर्मली तीन चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूं. क्या? वो बॉडी का लेंथ चेंज होता, वो बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता, एंड वो बॉडी का शेप चेंज होता. सो वी गेट अ थ्री टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट इज अ चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन शेप. सो आई एम राइटिंग देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन ऑकर ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स. Whatever force you applied known as the deforming force. Okay, that forces are tangential force, that force or any normal force. प्रेशर समटाइम वी ऑल्सो कॉल्ड, हम उसको प्रेशर भी बोल सकते हैं. सो डिफॉर्मेशन के तीन टाइप है. नॉर्मल तीन टाइप के डिफॉर्मेशन मिलते हैं हमारे को. चेंज इन लेंथ, दूसरा चेंज इन वॉल्यूम, एंड थर्ड इज चेंज इन शेप. Okay, so there are three type of deformation we get, that is the change in length, change in volume and change in shape. These deformation is till at the end of the chapter we are going to observe. Okay, and whatever force you applied, that force is nothing but the deforming force, and internal elastic restoring force also changes. Means what I am trying to say here, please pay attention. See, इफ यू कंसिडर वायर, अगर आप ये वायर को कंसिडर करते हो तो ऑब्वियस है ये वायर इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है, और जब हम उसको वेट लगा रहे हैं तो ऑब्वियस है ये इसको एक में को खींच रहा है. तो नॉर्मली ये इसका ओरिजिनल शेप है. जब इसको फोर्स लगाया जा रहा है या इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो इसका साइज चेंज हो रहा है. ओके, जब इसका साइज चेंज हो रहा है तो इलोंगेट हो गया, हम ऐसे बोल रहे हैं. जब मैं इसको फोर्स निकाल लूं तो इसको ओरिजिनल शेप पे चला जाएगा. ओके, वेरी सिंपल. इफ यू कंसीडर द एग्जांपल ऑफ, लेट अस, दिस इज द वन मॉलिक्यूल, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल एंड दे आर टाइटली बाउंड. नाउ द फोर्स इज अप्लाई. अगर मैं फोर्स लगा तो इस तरीके से इलोंगेट होंगे, और जब मैं फोर्स निकाल रहा हूं तो ये रिगेन करेंगे. बट अगर ज्यादा फोर्स लगा तो स्ट्रेच हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स. इसी को इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. ओके, आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपको इलास्टिसिटी समझना है तो आपको दो कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन. सो व्हाट इज स्ट्रेस? ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस? सी, पे अटेंशन. What is stress? According to definition of stress, stress is nothing but the internal elastic restoring force per unit cross section area of the body. What is stress? Internal elastic restoring force per unit cross
section area. Okay, I am going to show you with the help of diagram. See, ये रिजिड सपोर्ट है, ये इसका बॉडी, ये हमने लगाया फोर्स. तो मैं अभी थोड़ी देर पहला कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के वजह से ये रॉड बना है. जब मैं इसको फोर्स लगा रहा, रॉड इलोंगेट हो रहा. रॉड इलोंगेट हो रहा, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो है इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, पहले से थोड़ा ज्यादा लंबे हो गई है, मीन्स इट गेट इलोंगेटेड. दैट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, इसका ये ओरिजिनल शेप और ये शेप, इसमें काफी वेरिएशन दिख रहा. दिस इज नथिंग ड्यू टू this force. Okay, so stress is nothing but the internal elastic restoring force per unit area. अब ये स्ट्रेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया on the basis of deformation. That stress is categorized into 3 types on the basis of their deformation. That stress is categorized into 3 types. The first type is longitudinal stress, और उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं. फिर उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस, फिर उसके बाद शियरिंग स्ट्रेस, ऐसा भी उसको बोला जाता है. सो ऐसे 3 टाइप है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. सी द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. दिस इज ड्यू टू चेंज इन डिफॉर्मेशन इन देयर लेंथ, दिस इज ड्यू टू चेंज इन डिफॉर्मेशन इन देयर वॉल्यूम, एंड दिस इज ड्यू टू चेंज इन डिफॉर्मेशन ड्यू टू देयर शेप. सो व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस? ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ये वही वायर है. ओके, इसको मैं वेट लगाया, वेट लगाने के कारण ये इलोंगेट हो गया. वेरी सो मेनी टाइम वी ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, दिस इज द चेंज इन लेंथ एंड दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट द वेट. ओके, सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. व्हाट आई एम सेइंग? अप्लाइड फोर्स per unit area. So what is applied force? F. What is area? A. And this is the cross section area. मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया. क्या ये? क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, सो व्हाट इज F? mg. We can write here. What is F? mg, where m is the mass of rod and g is the acceleration due to gravity act on that rod. And what is A? Pi r square. Cross section. This is the circular path ना. See, this is a rod. Weight is applied. अगर weight लगा रहे तो इसका cross section area क्या है? That is nothing but the circle. And what is the circle? Pi r square. Okay? Longitudinal stress. तो ये हो गया इसका फॉर्मूला. इसका SI यूनिट, SI यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसका डायमेंशन, आई थिंक यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड डायमेंशन एंड ऑल. ओके, सो डायमेंशन इज L minus 1 M1 T minus 2. What? L minus 1 M1 T minus 2. So this is the dimension of stress, longitudinal stress. Okay, this is all about longitudinal stress. फिर हम जंप कर रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेस के ऊपर. वॉल्यूम स्ट्रेस मैं पहले ही बोला
कि क्या स्ट्रेस को कैटेगराइज किया है ऑन द बेस ऑफ डिफॉर्मेशन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में लेंथ के ऊपर इसको हमने एक्सप्लेन किया। वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए मैं एग्जांपल कंसीडर करता, लेट अस कंसीडर अ बलून और अ फुटबॉल, बास्केटबॉल, ओके, वॉलीबॉल, एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ऑल पॉसिबल साइड्स। एक बॉल है और आप उसको हर एक साइड से फोर्स अप्लाई करें। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, उसका हल्का सा एरिया श्रिंक होगा। हल्का सा एरिया श्रिंक होगा, इसका मीनिंग क्या है, वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा, उसका नॉट अ साइज, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, सी आई एम ड्रॉइंग द स्पीयर, मैं स्पीयर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा, बट आपको सर्कल ही दिखेगा यहाँ पे, बिकॉज इज अ 2D। ओके, तो ये मेरा है स्पीयर जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम है। ओके, इसको मैंने ऑल पॉसिबल साइड से प्रेस किया मीन्स क्या किया, मैंने इनडायरेक्टली इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो मैं वहां पे डीपी बोलूंगा। ओके, स्मॉल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ऑल पॉसिबल साइड। तो जब मैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो प्रेशर अप्लाई करने के कारण ऑब्वियस है इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम V, ओके, ये इसका चेंज इन वॉल्यूम है dV। ओके, तो अगर ये चेंज इन वॉल्यूम है तो बचा पोर्शन कितना, V माइनस dV। उसका बचा हुआ पोर्शन कितना है, V माइनस dV। ओके, सो अगर मैं इसके डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो आई थिंक यू नो दैट व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया। ओके, देयरफॉर F इज इक्वल टू PA। जनरल फॉर्मूला है प्रेशर का, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। ओके, यहां पे अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, बट अप्लाइड फोर्स क्या है यहां पे, PD है। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे P इज नथिंग बट द DP, एम आई राइट। और एरिया की बात करूं तो इसका एरिया A है। ओके, तो यहां पे एरिया ये हो गया, और जो मैं फोर्स वहां पे अप्लाई कर रहा दैट इज नथिंग बट द F। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पे यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, dP अपॉन A अपॉन एरिया A। ऑब्वियस है A गेट कैंसल, सो व्हाट यू गेट, dP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल थिंग, वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर, दैट इज नथिंग बट द dP। ओके, इसका SI यूनिट की बात करूं, सबको पता है प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी वही होगा जो यहां पे है, जो कि L1 L माइनस 1 M1 T माइनस 2। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम स्ट्रेस। फिर हम जंप कर रहे शेयरिंग स्ट्रेस। मैंने पहले बोला कि स्ट्रेस को हमने कैटेगराइज किया 3 हिस्सों में, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। ये ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन लेंथ, ये ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन वॉल्यूम, and this is nothing but the deformation in stress. Okay, very very important topic. See, I am trying to draw a diagram here. ओके, ये कोई क्यूब है जिसका ग्राउंड सरफेस फिक्स है, जिसका
ग्राउंड सरफेस फिक्स है. ओके, और मैं इसको ऊपर से फोर्स लगा रहा, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन टॉप लेयर ओनली. ओके, so this force is nothing but the tangential force. कौन सा फोर्स है ये? टेंजेंशियल फोर्स. तो जब मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर, तो व्हाट आई ऑब्जर्व, ओके. सो इसका पहला एंगल था 90, बाद में फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका एंगल चेंज. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल, सी व्हाट हैपन. ओके, ये क्यूब था जो अपने कंटिन्यूअस लाइन जो दिख रहे हैं, ये अपना ओरिजिनल क्यूब है. इसका ग्राउंड सरफेस हमने फिक्स रखा है जो कि स्टिक है अर्थ सरफेस के साथ, और इसके टॉप मोस्ट लेयर पे मैं फोर्स लगा रहा. तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, नीचे का सरफेस तो एज इट इज है, ऊपर का फोर्सेस हल्का सा स्किट हो गया, तो दैट स्क्वायर बिकम रोम्बस. स्क्वायर का क्या हो गया? रोम्बस हो गया. तो उसका शेप चेंज हो गया. पहले शेप क्या था? स्क्वायर. बाद में शेप क्या हुआ? रोम्बस. क्यों? ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स. यू गेट माय पॉइंट? लेंथ इज सेम, देयर इज नो चेंज इन लेंथ, बट द एंगल इज चेंजेस फ्रॉम 90 टू some theta. Okay, so what is the shearing stress? Shearing stress is nothing but the tangential force upon area. So what is tangential force here? Tangential force हम उसका F ही रखेंगे और एरिया यही रहेगा. इसको मैं ऐसे भी बोल सकता, अगर मैं नाम दूं इसको A, B, C, D, E, F, G एंड H, तो ये बनेगा E का E डैश, F का F डैश, G का G डैश, H का H डैश. ओके, तो उसका शेप चेंज हो गया. ओके, A B C D E F G H is the shape of square, and A B C D E dash, F dash, G dash and H dash, this dotted is the shape of rhombus. Okay, so here the SI unit is same, that is Newton per meter square, and dimension is also same, that is the L minus 1 M1 T minus 2. One interesting thing is here, the unit and dimension of any type of stress is same. Okay, let me recap the thing. What is stress? Internal elastic restoring force per unit cross section area. Now on the basis of deformation, stress is categorized into three types: longitudinal or tensile stress, volume stress and shearing stress. What is longitudinal stress? Applied force upon area. Applied force क्या है? W. W is nothing but the mg. Cross section area pi r square unit dimension. Volume stress, स्पीयर था, बलून था, ऑल साइड से प्रेशर अप्लाई किया, उसका वॉल्यूम श्रिंक हो गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया है नथिंग बट द डीपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीपी. ओके, सामने बहुत काम आने वाला है अपने. ओके, उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका डायमेंशन L-1 M1 T minus 2, वेरी सिमिलर टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. देन शेयरिंग स्ट्रेस. शेयरिंग स्ट्रेस में मैंने ऐसे बोला, उसका शेप चेंज हो रहा, पहले क्यूब बाद में रोम्बस हो गया. उसको कैसा फोर्स लगा? टेंजेंशियल फोर्स लगा. टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से उसका ग्राउंड सरफेस तो वैसे रहा, अपर सरफेस थोड़ा सामने मूव हो गया. तो व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस? लॉन्जिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया. सो दिस इज द यूनिट एंड डायमेंशन. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस. तो हमने इलास्टिसिटी समझने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना था हमको, एक था स्ट्रेस जो हमने अभी समझ लिया, इसके बाद हमको जो समझना है दैट इज द स्ट्रेन. आई नीड अ सेम डायग्राम, सो आई एम नॉट गोइंग टू रब द डायग्राम, I am going to rub the formulas only. Okay, please remember that. Okay.